Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the trigonometry surveying chapter. Okay, unit number 6 or module number 6. Fixed area method. There are main three cases for finding the distances and elevations. Case number 1, when the line of sight is horizontal and staff is held vertical. That means आपका टेलीस्कोप क्या है, C और D बिंदु पे उसका रीडिंग कितना है, 0 0 है. Second case, when the line of sight is inclined and staff is held vertical. That means considering the angle of elevation or considering the angle of depression. Line of sight क्या है, वो incline है, but the staff को कैसे held किया है, vertically रखा है. Okay, case number 2. Case number 3, when the line of sight is inclined but the staff is held normal to the line of sight. तो third case में क्या किया है, when the line of sight is inclined. That means एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है, बट आपको स्टाफ कैसे रखना है, तो जो भी लाइन ऑफ साइट है वो परपेंडिकुलर, जो भी स्टाफ है उसको कैसे रखना है, तो जो भी लाइन ऑफ साइट है उसके परपेंडिकुलर रखना है. केस नंबर 1. तो व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, यहाँ पे फिगर है. ओके, तो ये फिगर में से आप देख सकते हो, वन पोर्शन आई दैट इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्टाफ इंटरसेप्ट एस. स्टेडिया इंटरवल आई एंड स्टाफ इंटरसेप्ट एस, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास. देन दिस वन इज योर वर्टिकल एक्सिस. देन यहाँ से ये डिस्टेंस जो भी है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. देन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो भी है वहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल डी. ओके, और जो भी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है और जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट ग्लास का जो स्टाफ जो भी है, ओके, तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है दैट इज कैपिटल बी. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा ही है. वो इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास. PQR is a top axial and bottom hair reading. PQR small PQR. यहाँ पे notations थोड़े अलग होंगे. Okay. PQR that is the top axial and bottom hair reading. Then PR क्या है, that is PR is the stadia interval or length of the image. F is the focal length of the object image glass, focal length of the image glass. Then S is the staff intercept on PQ. So P and Q that is called the staff intercept on PQ. Then X is the horizontal distance from O to staff intercept. Staff intercept कितना होगा, यहाँ पे PR होगा, not PQ. X is the horizontal distance from the 0 to staff. X is the horizontal distance between the optical center of object glass to staff and optical center of object glass to eyepiece, that is called X test. Eyepiece or plane of crosshairs. D small d is the horizontal distance from the O to the vertical axis of the instrument. Small d is vertical axis जो भी होती है इंस्ट्रूमेंट वो, और जो भी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास है उसका डिस्टेंस स्मॉल d है. Then capital D is the horizontal distance from the axis to the staff. यहाँ पे staff रखा है. ओके, so that is the horizontal distance from the instrument axis to the staff. यहाँ पे क्या है, POP और QOQ passing through O or R straight lines. That means POP और QOQ are the POP and QOQ. POP and QOQ are the straight lines, and the triangle POQ and POQ are similar. Triangle POQ और POQ बराबर, और ऐसा भी बोल सकते हैं triangle POR and capital POR is the similar triangles. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x divided by x dash is equal to s divided by I. Okay, but x and x dash are the conjugate focal length, therefore 1 by f is equal to 1 by x dash plus 1 by x. Multiplying both by fx
तो यहाँ से मुझे यहाँ मुझे एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स डैश एफ प्लस एफ। अभी x डिवाइड बाय एक्स डैश का वैल्यू क्या है, s डिवाइड बाय i, तो x इज इक्वल टू s डिवाइड बाय i इंटू एफ प्लस एफ। बट एड c ऑन बोथ द साइड्स। अभी क्या करना है आपको, एड d ऑन द बोथ द साइड्स, नॉट c, एड d ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे मैंने d ऐड किया, x प्लस टी इज इक्वल टू s डिवाइड बाय i एफ प्लस एफ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉट c बट आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, d ऐड करना है, d ऑन बोथ द साइड्स। x प्लस t इज इक्वल टू f डिवाइड बाय s प्लस f प्लस d। अभी x प्लस d की वैल्यू क्या है, तो x प्लस d की वैल्यू कितनी है, दैट इज कैपिटल D। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल D इज इक्वल टू f डिवाइड बाय आई एस प्लस आई प्लस टी। यहाँ पे भी वैल्यू यहाँ पे कॉमन कर दिया तो आपको एक फॉर्मूला मिल गई, द कांस्टेंट k इज इक्वल टू f डिवाइड बाय आई। तो f डिवाइड बाय आई को क्या बोलता है, कैपिटल D दैट इज कांस्टेंट, एंड f प्लस d दैट इज आल्सो कांस्टेंट। f डिवाइड बाय आई क्या है, दैट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एंड f प्लस d इज द एडिटिव कांस्टेंट। वर्टिकल डिस्टेंस फॉर्मूला में वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, तो वर्टिकल डिस्टेंस है अगेन 0 बिकॉज लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। केस नंबर 2, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। दैट मीन्स आपको स्टाफ कैसे रखना है, ऐसे स्ट्रेट रखना है, वर्टिकली रखना है, कोई एंगल रखना नहीं है स्टाफ पे। और यहाँ पे एंगल कितना है, दैट इज थीटा। सेंट्रल है, रीडिंग है, वहां से एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन है, एंगल थीटा पे आपका इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स कंसीडरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना होगा, दैट इज यहाँ से आप ले लो, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बीटा है, तो यहाँ से ये कितना होगा 90, तो ये 90 माइनस बीटा होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा, ये एंगल यहाँ से 90 माइनस बीटा होगा। अगेन उसी तरह से ये बीटा बाय ये ओवरऑल दिस एंगल इज बीटा। ओके, तो आगे हम देखते हैं। लेट ए इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, A is the position of instrument axis, P is the staff station, DBC, DCB क्या है, is the points on the staff cut by the hair of the diaphragm, CA-K, A-K क्या है, that is angle theta, is an incline of the line of sight A-C- to the horizontal. BD क्या है, the distance B and D, that is called the staff intercept, the difference between the top and the bottom hair reading. Then CP क्या है, तो CP is C and P, that is the central hair or the axial hair reading. E-C-, E-C- क्या है, is the length, capital L is the distance along the line of collimation from A-C, तो ये distance है, okay, that is L. Then E-K, A-K क्या है, तो that is capital D, horizontal distance is the horizontal distance from the instrument to the staff station P. Then C and K क्या है, that is V is the vertical distance from the instrument axis to the point C. तो यहाँ पे आपको first of all angle theta कितना है वो find out करना है। Then यहाँ पे horizontal distance और vertical, ये थीटा की मदद से horizontal distance vertical distance क्या आता है वो find out करना है। Draw a perpendicular line
थ्रू सी टू द लाइन ऑफ साइट ए डैश सी डैश। तो आपको क्या करना है, ए डैश सी डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर ये स्टाफ इंटरसेप्ट होना चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ए डैश सी डैश। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, डी डैश, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी डैश हम नाम देंगे। ओके, draw a perpendicular line through C to the line of sight A dash C dash so that it cuts A dash C dash. It cuts A dash D dash in A dash D in D dash and A dash B in B dash is the projection of DB. It is the projection of DB perpendicular to A dash C dash. That means यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आपने क्या करना है कि जो भी हमारे पास लाइन ऑफ साइट है उसके परपेंडिकुलर खींच के आपको ये जो भी लाइन है ए डैश सी डैश उसको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेना है। दैट मीन्स ये लाइन को पैरेलल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट है तो यहाँ से इसको ज्वाइन करना है और उसी तरह से यहाँ से जो भी हमारे पास लाइन है उसको पीछे की तरफ और उसी तरह इसको आगे की तरफ खींचना है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ D and B. Line BD is perpendicular to line A dash K and B dash D dash is perpendicular to A dash C. अभी यहाँ पे B D C D dash, D C D dash and B C B dash. ओके, तो वो क्या होगा, दैट इज बीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, तो डी सी बी डैश, देन डी सी बी डैश एंड बी सी बी डैश, देन डी ए डैश सी एंड बी ए डैश सी। ओके, तो वो सब क्या है, दैट इज बीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम द फिगर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या समझना है, तो आपके पास दूसरा भी कर लेते हैं दिस। ओके, और ये एंगल कितना है, दैट इज थीटा एंगल है। ये जो एंगल है वो थीटा है। दिस वन इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल। अभी क्या लिया है आपने केस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इंक्लाइन। तो लॉजिकली हम देखें तो ये थीटा है और यहाँ से जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज सी के। This one is C and this one is K view point, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एंगल ये आपका थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। This one is a 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर, ये वाला। तो अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो पोर्शन है ना दैट इज 90 डिग्री और ये आपको एंगल मिला 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 90 और 90 डिग्री माइनस थीटा में से निकाला तो क्या नहीं, यहाँ पे रहेगा दैट इज थीटा।
तो एंगल बी सी बी डैश, ओके, दैट इज योर थीटा। और सिमिलर ट्रायंगल पे से ये भी एंगल कितना होगा, दैट इज डी सी डी डैश इज ऑल्सो थीटा। दूसरी बात, यहाँ पे एंगल बीटा है, समझो कि आपके पास ओवरऑल एंगल, इसने क्या किया है, इसने ओवरऑल एंगल ले लिया है, दैट मीन्स हाफ एंगल लिया है, दैट इज बीटा, बट ओवरऑल एंगल है, ये ओवरऑल एंगल ले लिया है, दैट इज फॉर एग्जांपल बीटा है आपके पास। तो ये कितना होगा, बीटा बाई 2 होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो भी एंगल है वो कितना मिलेगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस बीटा बाय 2, ओके। अभी ओवरऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल जो भी है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये डी डी डैश यहाँ पे है, दैट मीन्स ऐसा कुछ है, बराबर, ये है, और आपका स्टाफ ऐसा है। तो यहाँ पे आपका डी डैश है और यहाँ पे डी है, तो और यहाँ पे जो भी एंगल है दैट इज 90 डिग्री है, ऐसा कुछ है, बराबर। और यहाँ पे दैट इज ए डैश। तो ये एंगल आपका है अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2, जो भी है, बीटा बाई 2, और ये 90 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल कौन सा आएगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2। देखो इसने बीटा लिया है तो आपको बीटा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट यहाँ पे ये फाइंड आउट करना हो तो ये कितना मिलेगा, दैट इज ओवरऑल कितना आएगा, ये 180 आएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2। आपकी जो आरपी रथल या अतुल प्रकाशन की बुक है ना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके। तो इसमें आपको ऐसा हो तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ओके। बट इसमें ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस बीटा बाई 2। उसी तरह से यहाँ पे तो हमारे पास ये कितना है, दैट इज 90, दिस वन इज थीटा, ये कितना है थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, दिस वन इज ऑल्सो 90। तो ये मुझे एंगल फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है, दिस वन इज अ थीटा, और ये एंगल बी बी डैश सी फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा, तो दैट इज ओवरऑल कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस अल्फा बाय 2 आएगा, ओके। From the similar triangle D D dash C and B B dash C, D D dash C और B B dash C, जैसे अभी D C फाइंड आउट करना हो तो D dash C फाइंड आउट करना है, तो दैट इज તમે आपने પાયથાગોરસ लॉ पढ़ा होगा, ओके। પાયથાગોરસ નો નિયમ કહેવાય જેને, જેમાં दिस कर्ण इनटू cos थीटा, दैट मीन्स DC cos थीटा, एंड यहाँ पे क्या होगा, दैट इज B डैश C इज इक्वल टू BC cos थीटा। तो अभी दोनों को ऐड करेंगे, B डैश C और D डैश C, तो आपको क्या मिलेगा, B डैश C एंड D डैश C इज इक्वल टू, दोनों को DC cos थीटा प्लस BC cos थीटा ऐड करेंगे तो मिलेगा BC प्लस DC। तो BC प्लस DC क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट S होगा, ओके। और D डैश C और B डैश D, D डैश C और B डैश C कितना आएगा, दैट इज DB डैश, DB डैश इज इक्वल टू DB cos थीटा, तो D डैश B डैश इज इक्वल टू S cos थीटा। अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस G फाइंड आउट करने के लिए, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, देन फॉर्मूला हमारे पास है, जब भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, D इज इक्वल टू F डिवाइड बाय I। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय DB, तो दैट इज योर
वर्टिकल डिस्टेंस और स्टाफ इंटरसेप्ट। ओके, एस की जगह पे क्या रखा है, एफ डिवाइड बाई आई प्लस एफ प्लस डी। तो एस की जगह पे इसने क्या रखा है, डी बी रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टाफ इंटरसेप्ट। तो हियर डी बी इज इक्वल टू कितना है, एस है और एफ प्लस डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एस प्लस एफ प्लस डी। नाउ द इंक्लाइन डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, दैट इज ए डैश सी। तो ए डैश सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई बी डैश डी डैश। इंक्लाइन हमें फाइंड आउट करना है, तो एफ डिवाइड बाई आई बी डैश डी डैश प्लस एफ प्लस डी। वो हॉरिजॉन्टल साइड था, उसमें डीबी था। ओके, तो उसमें डीबी था। अभी इंक्लाइन करना है, तो बी डैश डी डैश का हमने वैल्यूज फाइंड आउट किया, दैट इज एफ डिवाइड बाई आई डी डैश बी डैश प्लस एफ प्लस डी। तो बी डैश डी डैश की वैल्यू रख दो, एस कॉस थीटा रख दिया, तो एफ डिवाइड बाई एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस डी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी मुझे फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, एल कॉस थीटा। तो अभी एल से एल का वैल्यू हमें मिल गया, इंक्लाइन लेंथ। तो इंक्लाइन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो एल इज इक्वल टू, यहाँ पे इंक्लाइन लेंथ फाइंड आउट करना है, तो एफ डिवाइड बाई आई क्या आएगा, बी डैश डी डैश प्लस एफ प्लस टी। सिंपली हमने लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रखा। अभी दूसरा कॉमन फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड वी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, एफ डिवाइड बाई आई एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस टी। तो क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू एल एफ डिवाइड बाई आई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एफ प्लस टी कॉस थीटा। एल की वैल्यू यहाँ पे रख दी, दोनों को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ डिवाइड बाई एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस टी कॉस थीटा। दैट हियर एफ डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू के प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू सी। डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस टी कॉस थीटा। ओके, आपके बुक में क्या है, ये बीटा की जगह पे बीटा बाई 2। ओके, और आपको ये याद रखना है कि ये एंगल कितना है, दैट इज बी सी बी डैश एंड सी डी डैश डी। वो एंगल कितना है वो याद रखना है। और फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रायंगल है सी ए डैश के ट्रायंगल है, तो उसमें एंगल्स कैसे आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है इस थियरी में। देन वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, तो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज v। तो v यहाँ पे थीटा है, तो दैट इज ये क्या कर्ण था, ये कर्ण है। ओके, दैट इज इंक्लाइन डिस्टेंस कैपिटल L। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू L साइन थीटा। तो L साइन थीटा, अगेन L की वैल्यू रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, v इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एस कॉस साइन 2 थीटा बाई 2 एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एफ प्लस टी साइन थीटा। तो क्या वैल्यू आएगा, v इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई इंटू एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस एफ प्लस टी साइन थीटा। तो हियर एफ डिवाइड बाई आई की वैल्यू क्या रखनी है, कैपिटल के, और एफ प्लस डी की वैल्यू क्या रखनी है, दैट इज कैपिटल सी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में रख दिया। एलिवेशन ऑफ द स्टाफ स्टेशन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एलिवेशन ऑफ द स्टाफ स्टेशन, दैट मीन्स यहाँ पे ये लेवल कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो दैट इज आरएल ऑफ बेंचमार्क। आरएल ऑफ बेंचमार्क का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई ग्राउंड है, यहाँ पे हमने बेंचमार्क रखा है, दैट इज आरएल ऑफ बेंचमार्क। तो क्या आएगा, फॉर्मूला इज आरएल ऑफ बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आरएल ऑफ बेंचमार्क लिया है, दिस वन इज योर बेंचमार्क। ओके, दिस वन इज योर बेंचमार्क। ओके, तो यहाँ से ये हाइट हमें लेना है,
So that is central height, benchmark, RL of benchmark plus this one is your elevation of the instrument plus RL of benchmark plus V minus H. That means elevation of the instrument. That means, for example, this one is your elevation of what high or elevation of instrument ये है. Okay. तो ये हाइट, दिस वन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें रख लेना है. बेंचमार्क प्लस दिस हाइट प्लस V माइनस H. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका RL मिलेगा. तो एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन मिलेगा. ओके. एलिवेशन ऑफ द स्टाफ स्टेशन फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो फॉर्मूला सेम ही यूज करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो. ओके. वहां पे हमें एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस RL ऑफ बेंचमार्क माइनस V माइनस H. ओके. तो इसमें फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं रहेगा, बट सिंपल आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया है उसकी जगह पे आपको माइनस V माइनस H लिखना है, बिकॉज हियर द एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये जो है ना, इसमें चेंज है, ये माइनस V है. जो आगे की फॉर्मूला थी उसमें क्या था, दैट इज प्लस V थी. ओके. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D is equal to F divided by I S cos square theta plus F plus T cos theta. Vertical distance K S sin 2 theta by 2 plus C sin theta. Okay, thank you.